پاکستان کا ایک پیغام ہندوستان کے نام بہت صاف ستھرا ہے کہ ہم پورے پاکستانی قوم ایک ہیں. اختلاف سیاست میں سیاسی حکومت کے ساتھ ہو مگر صرف ایک جگہ پہ ہندوستان میں کے معاملے میں ہم ایک ہیں. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا اور آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں اس چیز کو مت ابھاریں. اور ایک اور جو منسٹر نے سٹیٹمنٹ دی میں اس کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے میڈیا سے گزارش کروں گا ایک پازیٹیو رول پلے کیجئے اور ان لوگوں کو جو پاکستان کے خلاف یہ سازش کا حصہ بننا چاہتے ہیں ان کے بیانات کو نہ لگائیں. تو میں گزارش کروں گا مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ آپ سے کچھ گفتگو کریں. شکریہ مولانا صاحب. آپ کے کھانے کا بہت بہت شکریہ. کھانے کا مینیو کیسا بولیں صاحب؟ یہ نہیں بتا سکتے. میں نے اتنا زیادہ تھا کہ میں گن نہیں سکتا. جی آپ فرمائیں. جی ریاست یہ بتائیے گا کہ آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے میں خیال آپ تھوڑا سا بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. جناب ایاز صادق صاحب کا شکر گزار ہوں. انہوں نے ہمیں گھر بلایا اور ہمیں عزت دی. میں دل سے ان کی قدر کرتا ہوں. جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے میرے خیال میں انتہائی ذمہ دارانہ اور انتہائی سنجیدہ گفتگو انہوں نے کی ہے. ہمارے ملک میں اختلافات کے حدود ہونے چاہیے. ہم اختلاف رائے کا حق رکھتے ہیں. اختلاف رائے اصولوں پر کرتے ہیں, کرتے چلے آئے ہیں, کرتے رہیں گے, لیکن کسی کو اس بات کا حق نہیں دے سکتے کہ ہم ان سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بھی لیتے رہیں. اور میرے خیال میں قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدار ٹھہرے ہیں آج. تو اس حوالے سے احتیاط کا دامن ہمیں تھامے رکھنا چاہیے. ہمارا واضح موقف ہے کہ 25 جولائی 2018 کو دھاندلی ہوئی ہے. ہم اس حکومت کے جواز کو تسلیم نہیں کرتے. بار بار آپ ہم سے سن چکے ہیں اور اپنے موقف پہ قائم ہیں. اور آج وہی دن ہے جس دن میں آزادی مارچ میں لاہور سے گزر رہا تھا اسلام آباد کی طرف, اور آج بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ دن منا رہا ہوں اور یہاں سے اسلام آباد کی طرف چلوں گا. تنقید سے کوئی بالا تر نہیں. ہمارے ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو جاتی ہے, پھر ان کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیج دیا جاتا ہے, ان کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے. ہمارے ملک میں صحابہ کرام کی توہین ہوتی ہے, پھر انہی لوگوں کو عزت و آبرو کے ساتھ ملک سے باہر بھیجنے کے انتظامات کر لیے جاتے ہیں. لیکن ہمارے ادارے اتنے مقدس ہیں کہ اس کے افراد بھی ان سے زیادہ مقدس ہیں کہ وہ تنقید سے بالا تر ہیں. ہم شاید اس اصول کو تسلیم نہیں کرتے. ہم توہین آمیز رویے کے خلاف ہیں, چاہے وہ عدالت کے بارے میں ہو, جج صاحبان کے بارے میں ہو, جنرلز کے بارے میں ہو, لیکن ہم اپنی توہین بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس قسم کی صورتحال جو پاکستان میں بنائی گئی ہے, جن لوگوں کے زمانے میں پاکستان نے معاشی لحاظ سے ترقی کی اور ہمارے ملک کا ترقی کا سالانہ تخمینہ 6.5% تک پہنچ گیا تھا, آج 0 سے نیچے گر گیا ہے. ملک کا دیوالیہ کر دیا گیا ہے. پچھلی حکومتوں نے پاکستان کو بلیک لسٹ سے نکال کر
वाइट लिस्ट ले गए थे। कोई FATF के तहत हमारी कानून साजी नहीं हुई, हमने खुद अपनी पॉलिसियां बनाई। लेकिन आज हमारे मुल्क की मईशत कहाँ चली गई है। फिर माशी पॉलिसियां कमज़ोर भी होती हैं, माशी पॉलिसियां अच्छी भी होती हैं, लेकिन आम आदमी तक उसके असरात 5-5, 6-6 साल बाद, 10-10 साल के बाद मिलते हैं। यहाँ हुकूमत के पहले साल में लोग चीखना शुरू कर गए महंगाई के हाथों, और पहले ही साल में आपको याद होगा कि छोटे ताजरों और दुकानदारों ने देहात की सतह तक जाकर एहतजाजी हड़ताल की थी। इस वक्त मुल्क माशी लिहाज से दिवालिया हो चुका है और पाकिस्तान के लिए अब ये रिस्क बन चुके हैं। मुल्क की बका का सवाल है। नाजायज़ हुकूमतें हम पर मुसलत न की जाएं, धांधलियां न की जाएं, मुल्क की सियासत में मुदाखलत न की जाए, आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। पार्लियामेंट के इख्तियारात क्या हैं, पार्लियामेंट के हवाले से चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात क्या हैं, हमारे दिफाई इदारों के इख्तियारात क्या हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात क्या हैं, उसके अंदर रहते हुए हम मुल्क को चलाएं। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, हम उनके साथ खड़े होंगे, वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। लेकिन ये कि खुद को महवर समझकर, खुद को मालिक समझकर इलेक्शन के नताइज का खुद को मालिक समझें और अवाम के वोट की तकद्दुस का ये आलम हो, तो फिर ज़ाहिर इख्तलाफ भी होंगे, गिले शिकवे भी सामने आएंगे। और फिर अगर हुकूमत वाले जो अहमकों का मुरब्बा है पूरा काबीना, और ये लोग इस किस्म की ज़बानें इस्तेमाल करते हैं कि जिसके बाद आदमी को अपने जज्बात पे कंट्रोल करना पड़ता है, तो मैंने ऐसी कोई अहमक हुकूमत नहीं देखी जो आ बैन मुझे मार की सियासत करती है, जो खुद इश्तियाल दिलाती है अपोजिशन को। हमेशा अपोजिशन इश्तियाल की तरफ जाती है, हुकूमत उसको एतदाल की तरफ लाने की कोशिश करती है ताकि बहरान पैदा ना हो। यहाँ तो बहरान पैदा किए जाते हैं। तो इस हवाले से हम अपने मौक़िफ़ पे कायम हैं और PDM कायम है। PDM को तोड़ने की साजिश कराची में हुई, लेकिन PDM की जमातों ने अपनी भरपूर हिकमत अमली से उसको नाकाम बनाया है और अब भी कायम है, और हम शेड्यूल के मुताबिक अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आपकी क्या ऑपोजिशन जमातों की तहरीक जो है वो भी चल रही है, दूसरी तरफ आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत कब तक अपने घुटने टेक देगी? हुकूमत तो नहीं है, हुकूमत जिनकी है, फिर आप कहेंगे आपने फिर नाम ले लिया। मौलाना साहब, अयाज सादिक ने जो भी कहा कौमी असम्बली में, आप उसे इत्तफाक करते हैं या उसे इख्तिलाफ करते हैं? मैं तो समझता हूं कि इससे भी कुछ आगे जाकर हमें इत्तिफाक करना चाहिए, ये जरा कम है थोड़ा सा। आपने जो बयान दिया लगता ये है कि इमरान खान एक जानिब तो नरेंद्र मोदी को धमकियां दे रहे, दूसरी तरफ उन्होंने घुटने टेके मीडिया के सामने, क्या ऐसा है? देखिए, मैं इस इशू को हम जितना जल्द से जल्द ख़त्म कर दें, जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं, तो बेहतर होगा। मैंने वजाहत भी दे दी, मैंने आज भी बात कर दी, और मेरी जो ओरिजिनल क्लिप है वो भी देख लें कि मैंने क्या कहा, वो साफ जाहिर है। अब उसको जो प्ले अप कर रहे हैं, जो इंडियन मीडिया के एजेंडे को प्ले अप कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से कोई अच्छा सलूक नहीं कर रहा। इस इशू को छोड़ें, आप मौलाना साहब मेहमान आए, उनसे बात। मैंने तो गलत बात की, मैंने बात ही कोई ऐसी नहीं की, मैंने तो वजाहत तो आपको दे दी है। अच्छा मौलाना साहब, ये फरमाइए कि आपने तहरीक जो है वो हुकूमत के खिलाफ शुरू कर रखी है, जलसों पे लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन एक आसान सा तरीका है, आप अदम एतमाद तहरीक जो है वो कौमी असम्बली में पेश करें और हुकूमत जो है वो खत्म हो जाती है। क्यों आपको अपने लोगों पे एतमाद नहीं है? और करते हैं मशवरे पे आपके। देखिए दो चीजें हैं। सियासतदान का ये भी एक फर्ज होता है कि वो आम आदमी का तर्जुमान बने, उसकी जुबान बने। PDM में शामिल जितनी जमातें हैं और उनकी जो क़ियादतें हैं, वो आज अवाम की बात करते हैं। जब हम अवाम में जाते हैं, उनको सहारा मिलता है, उनको हौसला मिलता है, और वो समझते हैं कि हम गरीबों का भी कोई बोलने वाला है, बात करने वाला है। वरना जहाँ तक इस्तीफ़ों का मसला है, यकीनन मैं आपसे इत्तिफाक करता हूँ कि ये बहुत ही मुख्तसर और आसान रास्ता है, लेकिन चूँकि हमारे PDM के
आने वाले ऑप्शंस में शामिल है ये, तो जो भी तय होगा हम बाहमी मुशावरत के साथ जिस मौके को मुनासिब समझेंगे इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। पीडीएम के सरबराह है अब्दुल कादिर बलोच के हवाले से खबर आ रही है कि वो इस्तीफा दे गए हैं, तो उसमें उनको ये कहा है कि हम आपके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, इसमें कितना सच है? पता नहीं क्या कह रहे हैं जी। तो मौलाना साहब ये बताइएगा कि समझ में नहीं आई बात। अब्दुल कादिर बलोच के हवाले से खबर आई है कि वो पीडीएम से इस्तीफा दे गए हैं, तो क्या आप उनसे बात करेंगे? मुझे इल्म नहीं। मौलाना साहब ये बता दें कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया कि हमारी जदोजहद है वो इस हुकूमत के लाने वालों के खिलाफ है, और पीडीएम की क़यादत से यही आवाज़ उठाती है कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया इलेक्शन में, इलेक्शन चोरी हुआ। अब गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन होने जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि इसी आर्मी चीफ के होते हुए DGI के होते हुए वो भी शफाफ इलेक्शन होगा? देखिए, इस तरह तो आप गिलगित बल्तिस्तान क्यों जाते हैं? हमारे यहाँ ज़िमनी इलेक्शन भी तो होते हैं, तो हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा तो लेते हैं, आवाम के साथ एक राब्ते भी होता है, और नताए सामने आएंगे तो हम जिस तरह इस पर रद्द-ए-अमल दे रहे हैं उसमें दे सकेंगे। आज की गुफ्तगू से ये महसूस होता है आप दोनों की कि 16 अक्टूबर से जो मौका इख्तियार किया था अपोजिशन जमातों ने, आप उससे पीछे होते जा रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जो आपका मौक़िफ़ था वो बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा है। अयाज अली साहब ने भी यू टर्न ले लिया और आप भी यू टर्न ले लिया। मैं आपकी नफ्सियात को समझ रहा हूँ, आप एक सहाफ़ी की हैसियत से क्या कहलवाना चाहते हैं हमसे लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अयाज सादिक साहब के बयान से जो प्याली में तूफ़ान खड़ा करने की कोशिश की गई, हमारा ये भी फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी सियासत को उन हदूद में रखें जो आइन और क़ानून के दायरे में हो, पाकिस्तान के हुब्बुल वतनी के दायरे में हो। अगर इस किस्म के कोई इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू करता है और किसी के कैरेक्टर को तबाह करता है, उसके हुब्बुल वतनी को तबाह करता है, तो फिर ज़ाहिर है कि उसको नीचे लाना और अपने उस पटरी पे लाना जो उसका हकीकी मकाम है, उस पर अगर हम बात करते हैं तो आप हमें ये याद दिलाएंगे कि तुम तो पीछे हट गए। खुदा का खौफ करो। मीडिया से खास तौर पर कहना चाहता हूँ कि मुल्क को अगर आग लगती है तो भी आपकी इन सवालों से लगती है, मुल्क को अगर ठंडक मिलती है तो आप ये। तो गद्दारी का तारुफ बताएंगे, गद्दारी का तारुफ क्या है? सब लोग डेफिनेशन क्या है? गद्दारी के तारुफ के लिए हमुदुर रहमान कमीशन को सामने लाया जाए, फिर उसके बाद पता चल जाएगा। ये फरमाइए, सिविल लाइन में दरखास्त चली गई है मुकदमे के लिए, आपसे अभी तक पुलिस हुकाम ने कोई राब्ता किया या आपने उनको अपना कोई मौक़िफ़ दिया, ये बता दीजिए। जब होगा मैं बता दूंगा। अयाज साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि एक इकाई की आपने बात की, इसी एक इकाई के ऊपर जो है नवाज शरीफ का बड़ा तनकीद है, उस एक इकाई के ऊपर आज आप कह रहे हैं आप एक इकाई के साथ खड़े हैं, तो नवाज शरीफ के बयानिया से आप लोग पीछे हटते हैं जो वो तनकीद जो किरदारों के ऊपर कर रहे हैं, तो एक इकाई का क्या मतलब है? आप एक इकाई को देखें, दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप मुख्तलिफ चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने जो वहाँ कौमी असम्बली में कहा, उसके बाद मैंने जो वजाहत जब हिंदुस्तान की तरफ से ये हमारे यहाँ के लोगों ने सोशल मीडिया पे किया और हिंदुस्तान की तरफ ये वजाहत भी आ गई और मैंने आज भी वजाहत दी। मौलाना साहब ये फरमाइए कि आप जब गुड गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो मौलाना कहते थे ये करप्शन है, अब ये जो गद्दार और गैर मुहब्ब वतन कहना कि ये हुकूमत की कोई लाइन है कि आपको और लाइन की जानब ले जा रहे हैं? हजरत, ये हुकूमत अपनी हमाकतों के नतीजे में अब अयाज सादिक साहब की गुफ्तगू से या उनके कुछ अल्फाज से कोई इख्तिलाफ राय कर सकता है, लेकिन उसके रद्द अमल में पुलवामा का जिक्र करके जिस अक्लमंदी का मुजाहरा किया गया है उसका भी तो अंदाजा लगाया ना कि वहाँ है क्या, वहाँ किस किस्म के लोग बैठे हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में कोई संजीदा हुकूमत मौजूद है या कोई कानूनी हुकूमत मौजूद है या कोई अहल हुकूमत मौजूद है। नाजायज़, नालायक और ना अहल हुकूमत इस पर इस वक्त दो जगहों पे के खिलाफ एप्लीकेशन जा चुकी है इसी हवाले से, इस्लामाबाद और लाहौर के। एप्लीकेशनों के लिए तो बहुत लोग मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई ऐसा हो, क्या असेंबली में कहे हुए अल्फाज बाहर चैलेंज हो सकते हैं? नहीं, बाहर हो भी नहीं सकते। पार्लियामेंट इज अबाउ सुप्रीम। बहुत शुक्रिया।